Hey guys, hello, and very warm welcome back to my channel Ravan Onjo. So, in today's video, we are going to be looking at the topic of political history of ancient India. Okay, so when we are talking about the political history of ancient India, so there are certain things that you need to understand. First of all, I'm not going to talk about the very ancient, that is the Stone Age. I'm not going to be talking about it here. Okay, Stone Age is not going to be my topic currently. What I'm going to talk about is going to be from Mahajanapadas. What I'm going to be talking about, just give me a second guys. Okay, what I'm going to be talking about is going to be from Mahajanapadas. Okay, and I'm going to be covering up till before, exactly before medieval. Okay, and medieval would be the next lecture. So exactly before medieval I'm going to be completing this slide. Okay, so we'll be studying about ancient India. We'll be studying about ancient India, and that too the political history part. Okay, so if you're new to this channel, hello everyone, my name is Aman Onjo and I prepare video for SSC, UPSC, banking exams, railways, and many other, all the other exams where general knowledge etc is asked. I make video basically on general studies. I've done in-depth studies for UPSC people, and I make video on maths as well. Video on maths are going to be more and more frequent now, and I make all the other simple things. I don't do English. Apart from that, I make videos on basically everything. I have made many videos on zoology optional who want to take it in their UPSC. Okay, so you can check my channel out, and more videos are coming every day. So let us start. So first of all, let me just tell you the roadmap, how all the things happened. Okay, what all the things happened, and a brief overview. Okay, so first of all, what came is the Mahajanapadas. Okay, so Mahajanapadas came, and Mahajanapadas were basically monarchical in nature. That means the rule of a king. Okay, plus there was in certain Mahajanapadas there was oligarchy also that was observed. Okay, and oligarchy means rule of the wealthy, all those who are having great wealth, businessmen kind of people, they rule. So that is oligarchy. Okay, so we could say that it was not completely monarchical, because in the center there was a king and there were certain other council members, okay, who are from the influential family, who are there in the decision making, who are a part of decision making process. So we can say that it is a bit democratic as well. Okay, so this was the scheme that was being followed. Okay, now there were 16 Mahajanapadas in total, and from those 16 the most powerful that emerged was Magadha Mahajanapadas. The the written accounts of Mahajanapadas is there in the Buddhist text that is known as Angutar Nikaya. Okay, so this could be asked from the UPSC point of view, it could be asked. Okay, so now let's move on. As I told you that there was the rise of Magadha, so let us study the most powerful empire, that is Magadha. Okay, so when I'm talking about Magadha, so in the Magadha the first ruler was Bimbisar. The name of the first ruler was Bimbisar. Okay, in the end of the video I'm going to make a flow chart where I'll be putting up all the rulers sequentially. Okay, when did they came, who succeeded over whom. Okay, so Bimbisar was there, and the Bimbisar was a ruler who basically expanded mostly through the matrimonial alliances. Okay, so he expanded through matrimonial alliances by marrying the princesses and acquiring the area. Okay, for example, he got the territory of Kashi,
Okay, so the Kashi came under his territory. Okay, when he married, um, the king, the daughter of the king of Kosala. Okay, so when he married the daughter of the king of Kosala, he got Kashi as a dowry, which literally generated like around 1 lakh coins as a revenue. Okay, so this is the way that he expanded basically. Okay, um, and of course polygamy was a thing. Okay, so he also married the daughters of like chiefs of Lachavis, and he also married Madra Anga. Okay, so the polygamy was of course there. So he married and he expanded. Okay, so that was who basically the story of Bimbisar. Okay, now let us understand whom he succeeded. Who was he succeeded by? So he was succeeded by his son, who was Ajad Shatru. Okay, he was succeeded by Ajad Shatru, and he was basically aggressive in nature, and due to which there were many fights that he has to go through, like his maternal grandfather told him to return the territory because of his behavior, of how it is actually said that he murdered his father. It is not a proven thing, but some say that either he has murdered or either he has tempted him to commit suicide. So Azad Shatru actually was very very interested in the throne. So because of this behavior, his maternal grandfather wanted the Kashi territory back, but he said no, and due to which there was a war, okay, that he fought, and the war that he fought, after which the Kashi remained with him. Okay, so this was how it was. Okay, so he also fought like 16 long years of war with Chetak, who was the chief of Vaishali. Okay, Vaishali area. So he fought with them also like for the 16 years war. So you can see that how what kind of personality he had. Okay, so he was then succeeded by Udayan. Okay, he was then succeeded by Udayan. So Udayan was basically, he is having the main contribution of building forts over Ganga river, okay, over Son river, and over Patliputra. He has built many forts, etc. He was a patron of art, okay, and then Udayan was succeeded by Shishunaga. Okay, he was succeeded by Shishunaga. Shishunaga was the one who, he defeated the army, who defeated basically the army of Avanti. He defeated Avanti, that is the Malwa region. Okay, and he, of course, he made it into a part of Magad. ठीक है, इतना क्लियर हुआ है. उसके बाद शिशुनागा को किसने लिया? शिशुनागा को किसने सक्सीड किया? शिशुनागा को सक्सीड किया किसने? कालाशोका ने, who was basically the last ruler of Magad Empire. कालाशोका ने किया सक्सीड. कालाशोका ने इसके में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये याद रखना है कि इसके टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी. ठीक है, क्या हेल्ड हुई थी? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मगधा के. उसके बाद आए कुछ रूलर्स आए, वीक रूलर्स आए, तो उन्होंने क्या किया, वो आगे उनका चल नहीं पाया, तो उनको किसने सक्सीड कर लिया? यहाँ से उनको सक्सीड कर लिया, उनको सक्सीड किया गया. किसके द्वारा? उनको सक्सीड किया गया नंदा के द्वारा, नंदा एम्पायर. ओके, so they were taken over by Nanda dynasty. In the Nanda dynasty,
Basically, the most important one is that who was the establisher. So it was Mahapadmananda. Okay, and Mahapadmananda, and he was the most important ruler. Okay, and then it went on and on. There were many rulers, but in the end there was a ruler who was Dhanananda, who actually led to the downfall of Nanda Empire. Okay, so after the downfall of Nanda Empire was the Maurya Empire. So Maurya Empire, I'll just pick up the next slide to teach you the Maurya Empire. Okay, now let's talk about the Mauryan Empire. So when I'm talking about the Mauryan Empire, so the most important one who established it is Chandragupta Maurya. Under the mentorship of course, one and only Chanakya or Kautilya. Okay. Arthashastra was written by Chanakya Kautilya, an important point. अर्थशास्त्र की ग्रंथ इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है. ओके, देन कौटिल्य था, उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे से सब कुछ हैंडल किया. ओके, एक प्ले लिखा गया था इनके ऊपर, एक प्ले लिखा गया था बाय विशाखदत्त, and the name of the play was Mudrakshasa. Okay, so this was a play written, so you need to take care of this one. Okay, then there was Genghis Plain under his control. Then he moved towards the northwest area, and he started expanding there as well. Okay, there was a Greek Seleucus निकेटर, ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है, यू वुड हैव हर्ड इट अर्लियर एज वेल. तो सेल्यूलस निकेटर का फार नॉर्थ वेस्ट की तरफ कब्जा था, तो जो हमारे चंद्रगुप्त जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं तक ही वो गए, उसके आगे नहीं गए क्योंकि सेल्यूलस निकेटर का था. लेकिन इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था, ठीक है, सेल्यूलस निकेटर के अगेंस्ट, जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था. और उसी कैंपेन के पार्ट थे कुछ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शन इसके पार्ट थे, ठीक है. और बहुत अच्छे से किया, रॉक एडिक्ट्स लगाए उन्होंने, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस लगाए, ठीक है. अच्छा, सेल्यूकस को हराने में कामयाब भी रहे थे. सेल्यूकस का एक वो था, एनवॉय था, ठीक है. एनवॉय का नाम क्या था, मेगास्थेनिस इनके किंगडम में भी रहता था. ओके, and he also wrote an account that is called as Entitled Indica, कि उन्होंने पूरा इनके किंगडम को एक्सप्लेन करके एक अकाउंट लिखा था, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, बाद में वो एक एडरेंट जैना बन गए थे, जैन धर्म को अपना लिया था उन्होंने बाद में, और अपनी जो थ्रोन था वो अपने सक्सेसर को दे दिया. सक्सेसर कौन थे, बिंदुसार, ठीक है. बिंदुसारा को उन्होंने अपना जो है वो थ्रोन दे दिया, ठीक है. बिंदुसारा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया, उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट अपने अंडर लिया, ठीक है, मौर्य एम्पायर के अंदर लिया, ठीक है. जो सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत देने वाला पार्ट था वो ईस्ट का कलिंगा था. कलिंगा इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस. तो कलिंगा जो है वो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा था. इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क टू टेक इट अंडर हिज कंट्रोल. ओके, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस कॉन्क्वेस्ट को कि अपने कलिंगा को अपने अंदर करना है, उन्होंने इस कॉन्क्वेस्ट को अशोका, जो इनके सक्सेसर थे, उनको दे दिया. इनके पुत्र थे, ठीक है. सन of Bindusar was Ashoka, and this conquest was given to him that he has to expand and take under his control the place of Kalinga. Okay,
Okay, and he also started a campaign where he has prepared many rock addicts. उन्होंने रॉक एडिक्ट्स बनाए, कैंपेन चलाया इस एरिया को अपने अंडर करने के लिए, रॉक एडिक्ट्स बनाए, ठीक है। रॉक एडिक्ट्स, सॉरी मैंने ई लिख दिया, ए लिख दिया था, ई होता है, रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, बनवाए, ठीक है। बहुत सारा उनके पार्ट में इंस्क्रिप्शंस उन्होंने लगाई थी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे, अशोका जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे ये, ठीक है। ये सारे धर्मों को एक समान मानते थे, बोलते थे कि सब अपने धर्म की, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ बुद्धिस्ट, बट ही अलाउड टू प्रॉस्पर ऑल द अदर रिलीजन एज वेल, ओके। तो उन्होंने सबको एक बना कर रखा, ठीक है, बोला कि सारे धर्म इक्वल है एंड एवरी वन शुड लिव पीसफुली विद देयर ओन रिलीजन। सो वी कैन से दैट ही हैज़ वेरी वेरी nice qualities as a king, okay. He was a humanist and he had all the qualities of being a good ruler, okay. Then what happened was, अच्छा इस इनके कुछ एक चीज़ और आप लिख लो यहाँ पे, इन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बनाए थे, ये इसको धम्मा कहते थे। देखो ये हमारा धम्मा मीन्स हमारा धर्म है, ठीक है। और धम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ऑफिसर्स बनाए थे स्पेशल, जिनका नाम था धम्मा महामताज, ठीक है। ये ऑफिसर्स थे, ये देख रेख करते थे कि कोई धर्म के नाम पे या कुछ भी अनपीसफुल एक्टिविटीज़ ना करे। तो ये कभी कभी दिस कुड बी आस्क्ड, ओके। तो ये आपको ये याद रखना है कि ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दिस कुड बी आस्क्ड, ओके। देन जब अशोका ने 37 इयर्स रूल करा, उसके बाद इनको सक्सीड किया किसने, बृहद्रथा, ठीक है, बृहद्रथा, ठीक है। तो बृहद ये इनके लास्ट रूलर थे, ठीक है। और इनके पास इनके टाइम में शुंगा आर्मी आई, शुंगा आर्मी लेड बाय पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, उनके द्वारा, और इन्होंने जो है कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। अब हम शुंगा डायनेस्टी पढ़ते हैं। शुंगा ने कब्ज़ा कर लिया। शुंगा का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, उनके द्वारा ही ये फाउंड की गई थी, ओके। इन्होंने कब्ज़ा किया था। फिर उसके बाद शुंगा जब रूल किए थे, उसके बाद आया था इंडो ग्रीक रूलर्स। इंडो ग्रीक रूलर्स में क्या था, इंडो ग्रीक रूलर्स में बहुत सारे थे, पर सबसे इम्पोर्टेंट तो थे शका जो थे बहुत बड़ा इशू थे। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पे रूल करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे रूल करते थे ये लोग। और जो शका थे इट वाज अ बिग इशू, ओके। तो ये नॉर्थन एरिया और वेस्टर्न एरिया दोनों को, नॉर्दर्न भी और वेस्टर्न भी, दोनों एरियाज़ को रूल करते थे। अब इनसे लड़ने के लिए कौन आया, शकास को सबक सिखाने के लिए कौन आए, वहाँ पे आए कुशानास, ठीक है, कुशानास आए। कुशाना में जो इम्पोर्टेंट नाम है, सबसे पहली बात तो ये यूची ट्राइब के एक पार्ट थे, ठीक है, ये यूची ट्राइब के एक पार्ट थे। और ये सबक सिखाने के लिए आए इनको, किनको, शकास को, ठीक है। इनका जो फाउंडर है जो कुशानास का फाउंडर है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। KUJULA कुजुला कैडफाइसिस, ठीक है, ठीक है गाइज। तो ये था, और इनको किसने टेक ओवर किया था, इनको कैडफाइसिस 1 भी कहते थे, आई डोंट नो, हाँ ठीक है, इनको कैडफाइसिस 1 भी कहते थे। फिर कैडफाइसिस 2 ने इनको ओवरटेक किया। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट स्पेलिंग के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। बाकी इनका था वीमा कैडफाइसिस, इन्होंने टेक ओवर किया था, इनको सक्सीड किया था, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर कर लिया, यानी कि इन्होंने शकास को एलिमिनेट कर दिया। क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आए सतवाहनास। कौन आए,
सतवाहना बेसिकली इनके बाद नहीं आया, ऊपर उनका रूल चल रहा था कुशानास का। सतवाहना जो थे वो डेक्कन एरिया में रूल करते थे, ठीक है, डेक्कन एरिया में रूल करते थे। और उनमें जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था गौतमी पुत्र सतवाहन, नहीं सतवाहन है, गौतमी पुत्र और उनका जो बेटा था जिसका नाम था वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इन लोगों ने रूल किया, अच्छे से रूल किया इन्होंने, ठीक है। उनकी जो मिलिट्री पॉलिसी थी वो एक्सपेंशन की थी, मिलिट्रली एक्सपैंड करना उनकी पॉलिसी थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना रूल बनाया, रोड्स बनाए, फॉरेस्ट बनाए, घर बनाए, तो बहुत अच्छे से अपना किंगडम ये लोग चलाते थे, ठीक है। ये डेक्कन एरिया में रूल करते थे। फिर सर्दर्न इंडिया में कौन रूल करता था? तो सर्दर्न पार्ट में 3 रूल करते थे, चोला, चेरा और पांड्यास। चोला, चेरा एंड पांड्यास। चोला जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। इन दोनों ने मिलके अपने एक फोर्स बनाकर इस पे कलेक्टिवली अटैक किया था, बट इन्होंने इसको हरा दिया था। तो जो चोला थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते थे, ठीक है। और उनका पूरा राज, इन तीनों का पूरा राज चलता था कहाँ पर? सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये लोग वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे, इनके टाइम में बहुत अच्छा किंगडम चलता था। ये लोग म्यूज़िक, डांस, पोइट्री ऐसी चीज़ों में रहते थे। इनके जो वहाँ के जितने भी सिटीजन्स थे जो उस किंगडम में रहते थे, दे वर ऑल्सो इनटू दीज थिंग्स एंड मोस्टली ऑल द पीपल वर इनटू फार्मिंग। तो ये उनका प्रोफेशन रहता था, यही सारे प्रोफेशंस में वो चलते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा किंगडम रहता था उनके टाइम में, ठीक है। अच्छा, अब सीन आता है गुप्ताज का। नाउ गुप्ताज आर गोइंग टू एंटर इनटू द सी। गुप्ता, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर कब आया? गुप्ता एम्पायर सबसे पहले तो किसके अंदर आया, किसने इस्टेब्लिश किया? ये इस्टेब्लिश किया श्रीगुप्त ने, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद यहाँ पे घटोत्कच आए, घटोत्कच जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके बाद जो आए वो आए चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्त वन उनके टाइम में बहुत फ्लरिश किया, ठीक है। चंद्रगुप्त वन के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया और इनको ही एक तरीके से असली फाउंडर इनको ही माना जाता है गुप्ता एम्पायर का, ठीक है। अच्छा, उनके बाद आया एक बहुत ही ग्रेट रूलर जिसका नाम है समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्त जब आया तो वो एक बहुत ही ग्रेट रूलर था। इन्होंने अपनी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी लिखवाई जिसमें इनकी बहुत तारीफ़ हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन वॉज बाय हिम एंड ही वॉज कॉल्ड एज इंडियन नेपोलियन। मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंडियन नेपोलियन इनको बुलाया जाता था, ठीक है। अच्छा, अब समुद्रगुप्त को किसने सक्सीड किया? चंद्रगुप्त टू थे, वो भी अच्छे रूलर थे, ठीक है। बहुत एक्सपेंशन भी हुआ इनके टाइम में, इनको विक्रमादित्य भी बोलते थे, ठीक है। इनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो ये कि इनके टाइम में फाहियान जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो इनके कोर्ट में आए थे। फाहियान, उन्होंने बहुत अच्छे से इनके किंगडम को एक्सप्रेस भी किया। तो अगर पेपर में पूछता है तो आपको चंद्रगुप्त टू लिखना, कंफ्यूज मत होना। चाइनीज़ पिलग्रिम फाहियान विजिटेड हिज कोर्ट, ओके। फाहियान ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी इनके कैसा उस टाइम में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थे, ठीक है, क्या रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन थे, सब कुछ बताया था उसने अपनी बुक में, ठीक है, फाहियान ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? देखो, इनके बाद वीक सक्सेसर आ गए, जैसे कुमार गुप्ता आ गए, ठीक है। और कुमार गुप्ता और इन सब के टाइम में क्या हो गया? एक इन्वेजन हो गया जो कि था हूना इन्वेजन। हूना इन्वेजन ने इन सबको बर्बाद कर दिया और इनका किंगडम का डाउनफॉल हो गया, ठीक है। हूना इन्वेजन ने इनका डाउनफॉल करवा दिया। अब हूना इन्वेजन को टैकल किसने किया? हर्षा ने। हर्षा एम्पायर आया उसके बाद, ठीक है। हर्षा एम्पायर ने अच्छे से हूना इन्वेजन को टैकल कर लिया, हटा दिया उन्हें, ठीक है। तो हर्षा एम्पायर आया
तो हर्षवर्धन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर। ओके, इनके टाइम में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं लिख रही हूँ, हुएन सांग इनके कोर्ट में विजिट करके गए थे, अगेन अ पिलग्रिम चाइनीज ट्रैवलर। ओके, और इनके कोर्ट के एक पोएट थे जिसका नाम था बाणभट्ट। इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर अपने अपने बुक्स लिखे जिसके अकॉर्डिंग बताया, उसमें बताया गया कि हर्षवर्धन के एम्पायर में कैसा रूल होता था। तो इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे तरीके से रूल करते थे, बहुत ही एफिशिएंट गवर्नमेंट थी इन लोगों की, ठीक है, और सारे रिलीजन्स को बढ़ावा मिलता था, और सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म और हिंदुज़म को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक है, इनके किंगडम में, ठीक है। तो ये इनका सीन रहता था सारा। अच्छा, हमें एक एम्पायर और पढ़ना है जो कि है पल्लवा एम्पायर, ठीक है। पल्लवा डायनेस्टी में जो इनके फर्स्ट रूलर जो थे पल्लवा के, उनका नाम था सिम्हाविष्णु, ठीक है। सिम्हाविष्णु वॉज द फर्स्ट रूलर, ठीक है। उन्होंने, इनके पहले यहाँ पर कौन रहता था, इनके पहले यहाँ पे कालभ्रस रहते थे, और इनको डिफीट करके इन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अच्छा, बहुत ही फर्म एस्टैब्लिशमेंट किया था। और जो ग्रेट रूलर्स जो आपको पता होने चाहिए पल्लवा के, उनके नाम मैं लिख रही हूँ, महेंद्र वर्मन, ये आर है, ठीक है। महेंद्र वर्मन नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक है। ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। बाद में ये कन्वर्ट हो गए थे सैविज्म में, SAIVISM, सैविज्म, ठीक है। एक सेवियर रूलर, एक सीवियर सेंट थे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने, आई एम ऑलवेज राइटिंग रूलर, सेवियर सेंट थे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने अपने आप को सेविज्म में सेविज्म का धर्म अपना लिया था, ठीक है। इनको ऑल्सो नोन एज ममल्ला, MAMALLA, तो ये याद रख सकते हो, ममल्ला भी बुलाया जाता था इनको, ठीक है। और इनके टाइम में भी हुएन त्सांग ने विज़िट किया था, हुएन सांग ने इनके टाइम में भी विज़िट मारा था, ठीक है। पल्लवा कैपिटल कांचीपुरम, इनका कैपिटल क्या था, इनके कैपिटल में विज़िट मारा था कांचीपुरम। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एक आप चालुक्यास को थोड़ा सा और पढ़ लो। चालुक्यास इनके बाद आए थे, चालुक्यास ये लास्ट है। तो चालुक्यास जो थे, इनका जो पावरफुल रूलर था उसका नाम था, आई एम राइटिंग इट अगेन, थोड़ा स्पेलिंग की दिक्कत हो जाती है, पुलाकेसिन। नाउ हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट यू कैन, इज़ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्यास, ओके। इनकी जो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा गुत्थी होती थी, किससे, राष्ट्रकूटास से, ठीक है। नॉर्थ में राष्ट्रकूटास थे, पल्लवा साउथ में थे, तो और राष्ट्रकूटा और पल्लवा दोनों से लड़ाइयाँ होती रहती थी इनकी, ठीक है। किसकी, चालुक्या की। इनका जो रूल था वो 735 AD में एंड हुआ था, 735 AD में एंड हो गया था, ओके। एंड कैसे हुआ था, राष्ट्रकूटा ने इनको डिफीट कर दिया था। तो जब इनको डिफीट कर दिया था तो इनका रूल एंड हो गया था, किसका, चालुक्यास का एंड हो गया था, ठीक है। अच्छा, इनके टाइम में जब इनके टाइम के जो किंग थे, जो थे पुलकेशिन II जब आए थे, यानी कि इनके सक्सेसर पुलकेशिन I के सक्सेसर, तो इन्होंने अपना एक एम्बेसडर जिसका नाम था खुसरो, उसको कहाँ भेजा था, पर्शिया भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली रिलेशंस अच्छे थे, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इम्पोर्टेंट ancient political kingdoms and their important ones, okay. So I hope you understood it well. If you did, just consider subscribing this channel and
this gives us lots and lots of motivation. Just the reason is motivation. We get motivated to make more videos for you guys. And if you liked it, leave a like for me. Thank you so much guys. Have a very nice day. Bye. Stay safe, stay healthy. Bye.